In which latitude it is? Which was this latitude? This was 0 degree and here it was 30 degree. So ये वाला कौन सा हुआ? Tropical grassland. ठीक, this selvas are the tropical grasslands of South America. ठीक है, and again there is another one, pampas. Pampas are lying in which latitude? 30 to 60 degree, okay, southern part. So these are the temperate grasslands of South America. एक वेनेजुएला के पास आप देखोगे लानोस करके, लानोस नियर कोलंबिया एंड वेनेजुएला, यू विल फाइंड लानोस. इस मैप में भी है, देखो यहाँ पे लानोस है, ठीक है. एंड इन दिस मैप ऑल्सो यू सी लानोस. दीज आर ऑल्सो ग्रासलैंड्स नियर ओरिनोको रिवर. फाइंड इट, मिला लानोस, ठीक है. सेकेंड वन व्हाट वी रोट, दैट इज सेल्वास, एंड देन नेक्स्ट वन इज दिस पैम्पास. लानोस नियर ओरिनोको रिवर, ग्रासलैंड, ट्रॉपिक. अब रीजन देखो, ये ट्रॉपिकल पार्ट है ना, 0 डिग्री के पास है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है. अमेज़न रीजन सबने मार्क कर ही लिया, ठीक है. वी विल स्टडी इन देम, अभी थोड़ा डिटेल में इसको बायोजियोग्राफी में पढ़ेंगे, कैसे ट्रीज, प्लांट्स, वो सब चीजें, ओके, ठीक है. ये क्या थे? पैम्पास हमारे थे, क्या थे? टेम्परेट थे, टेम्परेट थे. इनके बारे में एक स्पेशल चीज है, दे हैव स्पेशल ग्रास, ओके, टेम्परेट ग्रास, दैट इज अल्फा अल्फा. They have a grass alpha alpha, ठीक है, which is a very nutritious grass. This pampa region has a very nutritious grass called alpha alpha. इस grassland में अब समझो, अब खुद लॉजिक लगाओ. If they are having very nutritious grass, what type of industry will develop in this region? Cows, animal rearing, ठीक है. So animal husbandry. Animal husbandry, large scale meat production is also having here, ठीक है. Meat producing state and meat packaged जो meat आते हैं ना, in large scale that is produced in this region because they have healthy milch cows and buffaloes are very healthy, high breed quality, okay. अर्जेंटीना, ये एक स्पेसिफिक अर्जेंटीना वाला जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना, ये चीज, ये वाला रीजन, ठीक है. यू सर्कल कर दिया करो उसको, एक स्पेसिफिक पॉइंट ना करके, जब भी ग्रासलैंड यू विल मार्क, यू विल एनसर्कल इट, ओके. मेंशन कर दिया एनिमल रेयरिंग, मीट फैक्ट्री, पैकेजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से. एक ग्रैंड चैको है, यहाँ पे देखो ग्रैंड चैको, ठीक है, ठीक है, कर लो. ग्रैंड चैको स्वैम्पी, ये देखो अब ग्रीन रीजन है, ग्रीन रीजन है, इधर रेन शेडो, यहाँ पे क्या है? स्वैम्पी रीजन है ये, स्वैम्पी, वाटर लॉक्ड. स्वैम्पी मतलब दलदली टाइप की, वाटर लॉक्ड रीजन है. वाई दे आर फेमस? बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ वुड, ओके. वुड, दिस ग्रैंड चैको रीजन हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ वुड कॉल्ड क्यूबेराचो, ठीक है, QUEBRACHO, क्यूबेराचो, ये याद रखना वर्ड, ठीक है. स्पेशल वुड कॉल्ड क्यूबेराचो, ठीक है. So this wood is used in the industrial purpose, okay? Industry or furniture making, okay?
वुड एंड टिम्बर इंडस्ट्री, ठीक है। दिस वर्ड कम्स इन एग्जाम, क्यूबराचो कहाँ पाया जाता था, साउथ अमेरिका में, दिस ग्रैंड चाको रीजन, ओके। सेल्वासी टेम्पर्स, ठीक है, written. This you can see Selva's region, इतना ग्रीनरी वगैरह दिख रहा है यहाँ पे. So this is a very dense green rainforest, evergreen forest are there. This Selva's region is an evergreen rainforest region. क्योंकि there are high trees, heavy rainfall, humid condition is there at the equator. What happens? This Brazil को आप देख लो, it is located near equator, tropical region. So what happens? यहाँ पे सुबह 11 मतलब सुबह 7-8 बजे से ही सन के एकदम टॉप पे राइज हो जाता है. Very high temperature from 7 to 1 p.m. There is a huge heat and insolation is there. High temperature occurs. Because of that, so much low pressure region is created. ठीक है, warm air is there. So what, it will rise again, condense, evaporation and condensation will happen. Then what happens at 4 o'clock? This condensed air falls every day, most of the days. So these are called 4 o'clock rains that happen in Brazil. This is a phenomena of Brazil, that is 4 o'clock showers or 4 o'clock rains in the afternoon. From 7 a.m. to 1 p.m. there will be intense heat and insolation. Because of that, low pressure convectivity starts. Okay, the air will rise, evaporation takes place, then it will form and condense and fall as a rainfall every day at 4 o'clock in the evening. So that happens near this equatorial region. This ठीक है, ज्यादा पानी होता है तभी तो ह्यूमिडिटी होती है. ह्यूमिडिटी होगी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, वेजिटेशन होंगे. सो इट इज वेरी heavily species, मतलब heavy dense forest plus huge biodiversity. Huge biodiversity. This Amazon forest is also known as the lung of the world, है ना? Lung of the world सुना था, ठीक है. तो इसको Amazon forest को, क्योंकि बहुत ज्यादा trees, plants and greenery है. Now last what is left? One desert is left with respect to this South America desert. इसमें mentioned है or not? हाँ चलो, we will be found in this. This is the Atacama Desert. This is one famous desert of South America, that is Atacama Desert. इसको मार्क करो. World's driest place it is. Driest desert. World's driest desert. One special thing about this is what happened. यहाँ पे हमने देखा ये डेजर्ट Atacama. इट इज अ डेजर्ट रीजन, है ना, डेजर्ट है. बट यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज वेरी प्रोनाउंस्ड. ओके, काफी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सो मच फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रोइंग इन दिस डेजर्ट रीजन? क्या होता है दिस एरिया, दिस साउथ अमेरिका का, इफ यू लुक एट द मैप, व्हाट इज हैपेंड, वन कोल्ड करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, पेरू करंट. Peru current is a cold current. ठीक है, this is a cold current. So it brings from the oceans, it brings the rich nutritious minerals in these regions. Nutrient rich water will come from depth of the ocean. Now fishes will feed on this. Heavy fish will be there. If nutrient rich water is coming, then what? Fishes will breed in this region. ठीक है, छोटी छोटी फिश फ्लो करेंगे यहाँ पे, फिश. एंड व्हाट हैपेंस, देयर आर बर्ड्स दैट आर फीडिंग ऑन दिस फिश. फिश यहाँ पे आ रही है साइड में, फिर ऊपर से क्या है, तरह तरह की बर्ड्स भी आती हैं इस पे, यहाँ पे सर्वाइव करती है, इनको फीड करती हैं. एंड व्हेन दे एक्सक्रीट
That excreta is what, nothing else but it is a fertilizer. So this was an amazing feature about this Atacama Desert कि desert होते हुए, you know that is a desert में कुछ life नहीं होता, industry नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है survival. So it's because of this phenomena that industry is growing in the Atacama Desert. Okay, fertilizer industry. ठीक है, this was a small news related to fertilizer. ठीक है, and Arica is the driest place in this. Arica, ARICA, driest place in this desert. Understood how this fertilizer industry grew? Arica is the driest place in this desert. Okay. One thing was left here. Andes में only there is one pass. If you look at the Andes mountains, this is a chain of mountains, right? So there is only one pass in whole Andes mountain. ठीक है? That is Uspallata Pass. You find out here. You will see. This is a single gap in this whole Andes mountain. Only one gap. USPALATA. It is in Chile, Argentina. It is a passage from Chile to Argentina. यहाँ पे इस लोकेशन पे आप देखो, मैप में दिखा, इस रीजन पे अकानकागुआ के पास नीचे मिला. नहीं मिला. So what all topics we have completed with respect to South America? What all things we studied? Mountains, peaks. नहीं मिला? Have you got? मार्क नहीं है उसमें. आप एक लिख लो वहां पे. The only gap between gap in the Andes mountain chain is the Uspallata Pass. It was there, map. आप लिख लो उसे, ठीक है. मार्क इट इन योर नोट्स बना लो, उसमें नोट्स में लिख लो, ठीक है. Now what we will do, we have studied North America, we have studied South America. In South America, let's revise what we did. We did mountains and peaks. We did what we did next, lakes we did rivers we did, ठीक है. Plateaus we did, है ना. Desert we did, rivers we did. So all the physical features we have completed, and grasslands we have mentioned what are they. Now we will combine this North America and South America. ये भी बताऊंगी. लैटिन अमेरिका, ये तो बता दिया मैंने. लिथियम ट्रायंगल नहीं, मैंने जो बस बोला लिथियम के लिए फेमस है, तो मतलब ये लोकेशन है, ये जगह का नाम है, ये इंडस्ट्री है, ये पॉस को समझ रहे हो, ये इंडस्ट्री है. टोयोटो, ये कंपनीज हैं. नहीं, जितना मैंने बताया वो आप याद रखो बस. इतना डेप्थ में आप वर्ड्स पहले फेमिलियर हो साउथ अमेरिका के वर्ड्स, है ना. ठीक है. नाउ ड्रॉ द कंबाइंड मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. कंबाइंड मैप वी डिड, एक बार हमने बनाया था. पहले आप लोग नॉर्थ अमेरिका बनाओ. ठीक है. नाउ यू विल स्टार्ट विद द साउथ अमेरिका. गॉट इट? लाइक दिस हमने किया था. लाइक दिस वी कैन ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. यू कैन ज्वाइन लाइक दिस. ड्रॉ इट अगेन इफ यू कांट ड्रॉ. छोटे में बना के देखो. Getting? Try to combine both the maps together.
जैसे नॉर्थ अमेरिका बनाया था, नीचे साउथ अमेरिका, उसको ऐड करो, नहीं डायरेक्शन ठीक करो, लैटिट्यूड नीचे सीधे आना चाहिए। एक्चुअल मैप आप देखो कैसा है, ये देखो थोड़ा सा लाइन, ठीक, ये बहुत अजीब है, थोड़ा सा सही करो और बेटर यार, थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करो, छोटा बनाओगे अच्छा बनेगा, ठीक है। थोड़ा बेटर है, चलो फॉर फर्स्ट टाइम इट्स ओके, ओके बेटर, इट्स ओके, नॉट एन इशू, मल्टीपल रिविजन्स के बाद ही प्रैक्टिस होगी, ओके अच्छा बन पाएगा। If this is first time you are drawing ना, for that it's okay. If you will draw 2-3 times, then it will become perfect. Okay. फिर से हम बनाएंगे एक बार और। चलो we will revise the latitudes first. पहले बताओ latitudes कौन से थे, पहले कंबाइन करके। Which was the latitude here? This was what, 49? What was this? No, what is this? This is 0 degree in South America. 0 degree बनाया था साउथ अमेरिका में, यहाँ हमने क्या बनाया था? And what was this 30 degree? And ऊपर यहाँ पे क्या था? ठीक है, so what are these? यहाँ पे we studied this is a Mexico country. This was Mexico, right? And here there are 7 countries. Mexico 7 countries, and here there are small islands. Okay, these are Caribbean islands, nations. ठीक है, and this is what, South America. So Mexico plus 7 these countries and Caribbean islands along with South America, this is called Latin America. अगर कोई पूछे स्पेसिफिकली विच इज लैटिन अमेरिका, वर्ड में आता है ना, हम लैटिन अमेरिका के बारे में कहते हैं ना, लैटिन, वी आर लैटिनास, ऐसे न्यूज में आता होगा। सो दिस ऑल कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज लैटिन अमेरिका। दिस 7 countries we studied, 7 Panama is some of Panama वाली countries, small countries, these 7 countries here along with this island nations, ठीक है, and this South America, this whole region is called Latin. ठीक है, मेक्सिको प्लस 7 कंट्रीज प्लस कैरिबियन प्लस साउथ अमेरिका, दैट इज कॉल्ड लैटिन अमेरिका। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन पीपल कम्युनिटी? यहाँ पे जो रहने वाले लोग, पीपल लिविंग हियर, दे स्पीक पोर्चुगीज। एंड पीपल लिविंग इन दिस रीजन, let's go with the blue, they speak Spanish. इधर वाले लोग, यहाँ वाले लोग क्या करते हैं? स्पेनिश बोलते हैं, और इस पोर्शन के रीजन वाले लोग क्या है? पोर्चुगीज बोलते हैं। ठीक है, एंड नॉर्थ अमेरिका वालों को हम क्या कहेंगे? एंग्लो सेक्शन, एंग्लो कहते हैं ना, एंग्लोज। एंड व्हाट दे स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है, समझ में आए कहां की बात कर रही हूं? ये लैटिन अमेरिका के ऊपर, फ्रेंच और इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे। इधर वाले रीजन जो है वो स्पेनिश बोलते हैं, यहाँ वाले पोर्चुगीज। कैन एनीवन इन्फर व्हाई इट इज लाइक दिस? यहाँ पे स्पेनिश, यहाँ पे पोर्चुगीज, क्यों? Correct. This is the main reason. Colonization was happening in 18th and 19th century. Say they were searching for new land, है ना? ब्रिटिशर्स ने ही काम शुरू किया था उधर से, यूरोपियन कंट्रीज थी, तो यूरोप से क्या है, काफी
ट्रैवलर्स आते थे, ठीक है। मेनी ट्रैवलर यूज्ड टू गो इन सर्च ऑफ इंडिया, दे यूज्ड टू गो एंड सर्च इंडिया ओनली। इसी वजह से यहाँ के नेशन को वेस्ट इंडीज बोला गया था। फिर वो इंडोनेशिया सर्च किया तो इसलिए उसको इंडोनेशिया नाम दे दिया, बट अल्टीमेटली दे वर सर्चिंग इंडिया ओनली because India was very famous and culturally very rich and resourceful also. So this European nations wanted to reach that place and optimize, मतलब resource ही use करना चाहते थे, है ना, colonize करना चाहते थे, trade करना चाहते थे। So because of they came and they inhabited this region, made colonies here. So इस वजह से their influence is still is there. So people living there still speak Portuguese and Spanish here. अच्छा, यहाँ के जो local native Americans थे, यूरोपियंस तो बाद में आए, है ना, यूरोपियंस केम आफ्टरवर्ड्स। द नेटिव पीपल that were living in North America, they are known as Red Indians. They are natives of America, North America, right? What happened? Christopher Columbus was searching India, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस घूमता घूमता कहाँ पहुंच गया था? नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। तो वो इंडिया के सर्च में था, बट अल्टीमेटली इट सर्च व्हाट, इट फाउंडेड नॉर्थ अमेरिका। गेटिंग द स्टोरी क्या हो रहा है? तो इसने यहाँ के लोगों को क्या बोला? रेड इंडियंस नाम दे दिया था। इस वजह से जो एक्चुअल इनहेबिटेंट्स है यूएसए के, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। अब तो सब मिक्स होते जा रहे हैं ना, कॉकेशियन रेस, यूरोपियन रेस, सब मिक्स होके जा रहा है, बट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स दैट वर लिविंग देयर, they are called red Indians, ठीक है। this is effect of colonization, because of this so much diversity is here, ठीक है। तो साउथ अमेरिका भी अब कंप्लीटेड। चलो अब हम करेंगे अफ्रीका। we will नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट, एवरीथिंग इज क्लियर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ठीक है। सैटरडे संडे विल बी फॉर योर रिवीजन, ओके। मंडे, कल सैटरडे, राइट? नहीं, रिवीजन के लिए व्हाट आई एम सेइंग, सैटरडे संडे विल बी अ रिवीजन डे फॉर यू ऑल, सो वी विल कंप्लीट अफ्रीका टुडे, ओके। हाँ, आपको दिखाया था मैंने उस दिन, लिखवाया भी था आपको, राइट? इस मैप, नॉर्थ अमेरिका के मैप। लुक हियर, ग्वाटेमाला, बेलीज, this El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama and Costa Rica. These are the 7 countries. These are the Caribbean. In Caribbean, just look what are the countries: Cuba, Jamaica. You remember the names and their capitals. Sometimes they ask if it is in news. Okay, Cuba, Bahamas, Jamaica. Go through this map. Okay, कि ये locations कहाँ पे हैं? Dominican Republic, Puerto Rico. 5 countries तो एटलीस्ट आपको यहाँ से याद रखो। First one is Cuba, second one Jamaica, थर्ड बहामास, ठीक है, ये फोर्थ वन डोमिनिकन रिपब्लिक, फिफ्थ वन पुर्तो रिको, ठीक है। एक फेमस शटलर है ना, उसेन बोल्ट, ही इज फ्रॉम जमाइका, राइट? इस जमाइका से है उसेन बोल्ट, स्प्रिंटर, तो ही इज फ्रॉम दिस जमाइका, दिस आइलैंड, ओके। फेमस स्प्रिंटर उसेन। स्पोर्ट्स, हाँ, वो कल्चरली वहां से नेचुरली हैबिटेड वैसा उनका हो जाता है ना, इनहेरिटेड वो चीज हो जाती है। जैसे अफ्रीका में आप देख लोगे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ट लोग होते हैं, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपैक्ट डालता है लोगों पे, ठीक है। दैट हाउ वी आर अपब्रिंगिंग, हमारा हेल्थ, बॉडी कैसे डेवलप हो रहा है, तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट इज दिस? अंडरस्टूड व्हाट इज लैटिन अमेरिका? यू गॉट व्हाट इट इज लैटिन अमेरिका? No, specifically which countries are there in Latin America? Latin America. Just now I explained na Latin America. Which 13 countries? Which is South America and Latin America? There is a difference, right? Yeah. Latin America. Just now I explained what is it. Caribbean. Speak properly. Which are the countries in Latin America? Mexico, Caribbean, and South America. South America, along with the 7 countries also of that Isthmus of Panama. Okay, so they are Latin America. अच्छा, another one एक और आता है. What is Central America? इसी में हम देख लेते हैं. Central America में this Mexico and this 7 countries. Only these 2 are considered as Central America. ठीक है? If somebody will say Central America, so it will be talking about Mexico and this other 7 countries. Okay, chalo, we will end this here and